अभी तो काफी लोगों ने 2-3 महीने में कंफर्ट जोन में, दिस इज नॉट रिलेटेड टू स्पिरिचुअल, दिस इज एन ओवरऑल थिंग। Have I experienced the 3Ds? आप 4D का भी मेंशन कर सकते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ है। Think of those examples. And when I want to convert my desires to my actions, what is my time frame? अभी, आज, कल, I am involved with too many responsibilities. How often do I have the vivek to make the right choice in choosing higher over the lower? How many people answered always? Higher over the lower. Okay. And how many people answered confused? And generally not? The child isn't any clear. In pursuit of the higher, how often am I willing to step out of my comfort zone? How many people answered always in this? Always ready to move out of your comfort zone? तो कोई भी टास्क आपको दे देंगे, आप अचीव कर लेंगे। नहीं, अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट कर लेंगे। Very good. I really see that in Anjali. She is always ready for any task, so it perfectly goes on for you. So और कितने थे always वाले? तो वो sometimes है ना उसके। अरे जो उसमें भी in between always and sometimes। Next time 5 कैटेगरी बनाना। वो Gaussian special always और sometimes in between वाला। And rarely never the danger one. Oh, very good bro. कोई भी टास्क हो कुछ ना कुछ तो थोड़ा ट्राई करेंगे, भले वो रेडी में वो चांस लग जाएगा कभी ना कभी। ओके, वेरी गुड। And when I want to convert my desire into action, what is my time frame? Act on it now वाले कितने? 1, 2, very good. 3, 4, 5, 6, 9, good. 7, 8, very nice. Good. Start with enthusiasm but fizzle out in due course. How many are the fizzlers over here?
पैरामीटर सेट मैं उसको 3 या 4 की ग्रुप्स बनाकर करने वाला हूं. You just clear it out, then I'm going to give you a minute or two to scan through those parameters and rate yourself. It's a self-rating mechanism. कोई यहाँ स्कोर निकलने वाला नहीं, कोई मेडल लेने वाला नहीं, कोई गिफ्ट देने वाला नहीं. सही है? It's a self-scoring, self-awareness mechanism that where am I standing in this entire journey of spiritual growth? 3 या 4 के अंदर I'm taking it from here and then I take it exactly on the higher level where chances सबके नेगेटिव की तरफ जा रहा है. But don't worry, at least you have those parameters in your mind कि ये मैं अचीव कर सकता हूँ. First step, CD scan करने के लिए. Ready? Are we ready? हाँ, तो मैं कहूँगा से even I'm ready now. Come on. सत्संग. How do you rate? No, don't read. I'll tell you how to read. After the first set, I'll tell you how to read. First 3, just hear them out. The first one I'm telling सत्संग. मैं बताऊँगा इस चीज के बारे में. Then we'll go through very shortly. 4 टाइप के, ये पहले भी मैंने बोला है, 4 टाइप के विनय से तो बहुत बार डिस्कशन हुआ है. 4 टाइप का संग होता है. कुसंग, असंग, सत्संग और परम सत्संग. कुसंग मैं लास्ट डिस्कस करता हूँ. परम सत्संग इज आत्मज्ञानी का, the divine people, उनका कितना आपका सत्संग बड़ा है ये आपको मॉनिटर करना है. सत्संग अपने जैसे सत्संगी भाइयों का who are on this mission, on this journey to go towards the soul, उसका आपका संग कितना रहा है, has it increased in this period of time? that means आपको उनके साथ रहना अच्छा लगता है, आपको परम सत्संग करना अच्छा लगता है, आपको एक अलग ही फीलिंग आती है. परम सत्संग आपकी इच्छा होती है मैं बार-बार करूं, मैं बार-बार उनके सामने जाऊं. और that was a divine feeling that day, right? So don't you feel that you feel like मैं और ऐसा संग मिले, तो that means this journey has started. असंग अपन बदल नहीं सकते, वो अपने रिलेटिव्स होते हैं, so we cannot change that. So you have to just be along with it. The thing that what we need to do in our lives is कुसंग से अपने को बचना है. Now you feel that some negative force is taking you away. See in this journey when you start, आपको 4 बाजू से खींचा आएगा वापस पीछे लेकर जाने के लिए. तो वो कुसंग से अपने को कॉन्शियसली बचना पड़ेगा. हो सकता है कुछ फ्रेंड्स मेरे 20 साल पुराने दोस्त होंगे, बट अगर वो ज्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस वाले, अगर वो मेरे को पीछे खींचने वाले हैं, आपको आज वो कॉन्शियस स्टेप और डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप टोटल फ्रेंडशिप ऐसा नहीं कि आप काट दो, बट उनसे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स कम कर दें. ये चीज डिवाइन रिट्रीट में भी अपने डिस्कस की थी. और जो आपको आगे लेकर जा रहे हैं उनसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, वो आपका सत्संग में आ जाएगा, वो आपको आगे की तरफ लेकर जाएंगे. It will be your conscious move. Like we said, in every growth journey, now you will apply the theory of the 3Ds. It will be difficult to do it initially. It will give you discomfort also, उसको बुरा लग जाएगा, उसका ये सब होगा. So now you have to rate yourself कि क्या आपका सत्संग और परम सत्संग बढ़ा है, क्या आपने कुसंग को छोड़ा है, प्रयत्न पूर्वक छोड़ा है, या कितने बार ऐसा नहीं होगा कि ये मैं छोड़ नहीं सकता हूं और ये मेरा बढ़ रहा है. ऐसा भी हो सकता है. So you yourself will do that analysis today. But ये बढ़ेगा तो ये कम होना जरूरी, ये होगा ही, वरना कहीं ना कहीं गाड़ी में ही कभी भी वापस उस तरफ जा सकता हूं. So सत्संग. सेकंड, आहार पे विजय. इस जर्नी में क्या मैं आहार पे थोड़ा क्रमिश क्या मैं कुछ आगे बढ़ सकता हूं? Dieting वाले, a lot of people who are dieting, definitely they have some control over it. मेरे को आज चिराग का एक conversation याद आ गया इसका. We were over some nice dinner and he told me that this was like probably 15-20 years back, and he said that महाबलेश्वर हम लोग बॉम्बे से सब लोग घूमने जाते हैं, ऐसे महाबलेश्वर में क्या देखने करने को है? You remember that conversation? He said महाबलेश्वर में the only source of entertainment is वो आपकी गुजराती थाली. Marwadis or Gujaratis को the only source of entertainment. If you analyze our life, how much our life revolves around food. खाने के बारे में अपना विकल्प, अपन घूमने जाते हैं ना पिरामिड्स के बाहर क्या खाने को मिलेगा वो अपने ले जाते हैं. की पिरामिड्स की हिस्ट्री, पिरामिड्स के बारे में मम्मी के बारे में नहीं मेरे को मम्मी के हाथ का खाना चाहिए, मम्मी खा रही है. Our entire focus, the thing is धीरे धीरे in this journey अपने को, I'm not saying it will happen from 0 to 100, but कहीं ना कहीं मेरा आहार के ऊपर कंट्रोल थोड़ा बढ़ना चाहिए. I should
डिस्टर्ब इफ थिंग्स आहार भी मेरे को अपने हिसाब से नहीं मिले। सो मेरे को छोटे छोटे प्रयत्न करने पड़ेंगे। ये जो अपने व्रत है, अपना जो भी अपन अनशन, गुणोत्तरी, भिक्षाचारी, रस परित्याग, जो भी अपने ये आहार के जो अपने निर्जला के प्रकार थे, ये सब क्या है? ये सब वो आहार पे विजय। आहार पर जिस दिन आप विजय प्राप्त कर पाओगे उस दिन आपके मन के ऊपर, तभी आप मन के ऊपर पहुंच पाओगे, वरना आप मन के ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। और जब तक आप थॉट को पकड़ नहीं पाओगे, आप बियॉन्ड थॉट का जो तत्व है आत्मा को भी कभी पकड़ नहीं पाओगे। तो इसके लिए आहार पर विजय लेकर आना बहुत ही आवश्यक है। तो इस जर्नी में आपको नोटिस करना होगा। अभी आरटीए में अपन एक संज्ञाओं को लेंगे। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, और उसके ऊपर कठिन साधना दी जाएगी। एक के ऊपर अपन विजय प्राप्त करने की अंश मात्र में, विल सी दैट इट वी आर प्रोग्रेसिंग। आपको डिफिकल्ट साधना देंगे उसके ऊपर करने के लिए, फिर आपकी स्टेबिलिटी चेक करने को बोलेंगे कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर रहे, तो ही आप मन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो आपको देखना है कि आहार आपको कितना डिस्टर्ब करता है। तीसरा, स्कैन करने के लिए अभय। आपका भय कम हुआ कि नहीं, आपकी इनसिक्योरिटी कम हुई कि नहीं हुई। किसको यार भय सताता है कि नहीं? पब्लिक स्पीकिंग का भय किसको सताता है? हाँ, पब्लिक स्पीकिंग का भय। और स्मिता को लीडर, एस्पायरिंग लीडर को पब्लिक कंडक्टिंग मीटिंग में, और हाँ सताता है कि नहीं सताता है? तो आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आज मैं भी आपको आगे का लेक्चर देने को नहीं बोल रहा हूं, आगे आइए। ओके, स्टैंड अप ओवर देयर। स्पीक तो आप कर सकते हो। और कितने बार आपकी बिल्डिंग में वॉचमैन के पास बताया, इसी लॉबी में बहुत बातें करते हो, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग तो हो रहा है, बेडरूम स्पीकिंग तो है नहीं वो। हाँ, तो पब्लिक में बातें हो सकती है, तो फिर वो भय किस चीज का? स्पीक यू कैन, पब्लिक में भी बात कर सकते हो, तो फिर भय किस चीज का? भय के पीछे छुपा है एम आई लुकिंग गुड, मैं बोलूंगी तो लोग उसकी तारीफ। रॉन्ग तो नहीं है, गलत तो नहीं हो जाएगा, दैट आल्सो ब्रिंग्स। हाँ, वो भी भय होता है, पर सबसे ज्यादा भय होता है कि मैं ऐसा कुछ बोल दूं कि लोग उसके ऊपर हंसे, ये करें। सही है, पब्लिक स्पीकिंग एस्टैब्लिश्ड, यू कैन डू इट। तो होता है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। तो ये चीज अगर अपन एस्टैब्लिश कर दे, तो आपको देखना है इस पूरी जर्नी में छोटे छोटे आपके भय निकल जाएंगे। आदमी जब स्पिरिचुअली ग्रो करेगा, वो धीरे धीरे निर्भयता की तरफ जाएगा। फूलचंद जी बता रहे थे, वो क्या बोलते हैं, वो हर समय वही बोलते, संदीप मैं तो अपना कफन अपने साथ में लेकर चलता हूँ, मैं यमराज को बोलता हूँ आज मैं कर लेकर चल जाऊँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी निर्भयता, ऐसी डिवाइन सोल्स में जब हम देखते हैं, गेट इंस्पायर्ड। आई रियली, वो उनका हर समय वो स्टेटमेंट मेरे मन में बार बार आता है। इसीलिए जब मैंने इस चीज को, इस चमड़ी को, ये कपड़े, इसको भी मैंने जब कपड़ा मान लिया, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी मौत तो होनी नहीं वाली। जब आपको इस चीज का भय निकल जाता है ना, तो आपको धीरे धीरे सब भय निकल। सबसे ज्यादा भय होता है अपने ही शरीर का, अपने ही मौत का, और जिस दिन वो निकल जाता है, धीरे धीरे सब भय निकल जाता है। तो अभी आपको मैं 2 मिनट, 1 मिनट दूंगा स्कैन करने के लिए। ये 3 चीज में क्या आपकी ग्रोथ हुई है? क्या आपके थोड़े भय कम हुए हैं? क्या आपके आहार के ऊपर थोड़ा कंट्रोल आया है? क्या आपका कुसंग कम हुआ है? क्या आपका सत्संग बढ़ा है, या करने की इच्छा बढ़ी है, या परम सत्संग की तरफ आपका आकर्षण बढ़ा है? प्लीज 1 मिनट, जस्ट रेट इट डाउन इन one line for each one of you. मैं चाहूंगा सब लोग लिखें, जिसके पास पेन है। अपने आप से बात करने की, अभय, सत्संग, आहार विजय। Have I progressed in this last 1.5 years on these? कुछ की जर्नी 6 महीने की, 4 महीने की है।
पॉइंट्स जरूर नोट कीजिएगा, यहाँ टाइम कम है, पर बाद में आपको इन चीज सब 20 पैरामीटर्स पे इंट्रोस्पेक्शन करना है। चौथा पॉइंट, सॉरी मैं टाइम कम लूंगा तो 20 पॉइंट्स कवर करने हैं, बट यू विल नोट डाउन दीस पॉइंट्स। अगर आपका अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो बाद में जरूर इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करना। अननेसेसरी गॉसिप, ये चीज एक साधक को, एक मुमुक्षु को और एक साधक को खास ख्याल करना है कि मैं आई एम नॉट सेइंग इट विल हैपन ड्रास्टिकली कि मैं बात करना ही बंद कर दूं, बट इट इज अ ग्रेजुअल थिंग कि मैं 1% कम करूं, 2% कम करूं, 3% कम करूं, जहां आवश्यक नहीं है। ग्रुप में मैं रमन मुनि के पास गया था, उन्होंने एक बार मेरे को बहुत अच्छी साधना दी थी कि संदीप तुम ग्रुप भले ही बात करो तो अच्छी बात होगी, बट जब ग्रुप बनता है तब कॉन्शियसली थोड़ी कम बात करो, क्योंकि जब ग्रुप बनता है तब अपने को अपना ज्ञान दिखाने का, प्रदर्शन करने का और वो एक इच्छा होती ही है दैट यू आई नो अबाउट, इसे थोड़ा वहां कॉन्शियसली 5% कम बात। सो द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग एक्स्ट्रा, भले आज आप रोक नहीं पाओगे, देखो कितनी बार आदतें बदलना टाइम लगता है, बट एक अगर आपकी अवेयरनेस भी जागती है कि इस पर मेरे को प्रोग्रेस करना है। अच्छा, अननेसेसरी गॉसिप पे क्या करोगे? काफी बार तो यू आर जजिंग थिंग्स, बहुत बार हो रहा है वो चीज, अपन अपने कितने नेगेटिव इंसिडेंट्स, वो सब पास्ट के बारे में अपन बातें कर रहे हैं, जो क्या वो आवश्यक है? इज इट रिक्वायर्ड? सोचना, भले आप बात भी कर लो, बट एक बार ये विचार भी अगर आने लग जाए, करने के बाद भी आ जाए क्या वो आवश्यक था, करते समय भी आ जाए क्या वो आवश्यक है अभी जो मैं कर रहा हूं, तो आप थोड़ा तो रिट्रैक्ट होंगे, भले एक परसेंट भी कम होगा। इसी तरह से ग्रोथ आएगा। ग्रोथ विल नॉट बी 0 to 100, इट विल नॉट हैपन, बट कॉन्शियसली धीरे धीरे लेकिन आप 10 बार करोगे तो एक बार में आपको ख्याल आएगा, अरे मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों कर रही हूं जो आवश्यक नहीं। नेक्स्ट, कथनी करनी की समानता, what I speak I do, ये एक मुमुक्षु और साधक का लक्षण होगा कि मैं जैसे बोलता हूं वैसे करता हूं, मैं बोल कुछ और रहा हूं और कल इसमें झूठ का बेस बनता है। इवन पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन एक हिसाब से कथनी और करनी। मैंने सोचा मैं इस टाइम पर पहुंचूंगा, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली परफेक्ट टाइम, बट आई एम सेइंग दैट कितने बार अपन उसमें कितना झूठ इन्वॉल्व होता है। धीरे जब आप चीज समय पर करने लग जाओगे, कुदरत ऐसा होगा कि आपकी चीजें भी समय पर होने लग जाएंगी, ख्याल रखो। और जब आप लेट होंगे, कुदरत भी आपके लिए काफी कुछ चीज लेट करते जाए। कितने लोगों को समस्या है कि टाइम कैसे मिल सकता है। बिलीव मी, इन दिस जर्नी जो सबसे ज्यादा बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज, लॉट ऑफ पीपल के मन में आता होगा, संदीप हाउ इज ही मैनेजिंग ऑल दीस सो मेनी थिंग्स हैपनिंग एट वन टाइम। My parents are here, my wife is here. They know, Shushma, I have been spending more time with you than before. I have been spending more time with my family than before. This is the beauty of the I-journey. This is my personal benefit of the I-journey. वो सब कार्य होंगे और सब टाइम पे भी हो जाएंगे और परिवार को भी टाइम दिया जाएगा। It's not that they are neglected. आपके जब प्योरिटी लेवल 1% भी बढ़ती है ना, आपका काम अपने आप भी होने लगता है और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। So try it out। और unnecessary ये सब चीजें, unnecessary gossip, ये सब आपका एनर्जी बचता है। जब आपकी एनर्जी बचती है तो उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन मिलता है। पास्ट डिगिंग, मैं कितना भूत में रहता हूं। बहुत समय अपने को जब पुरानी चीजें अपन कवर से निकालते हैं ना, तो अपने को भूत ही सामने क्या आना चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छा एक एग्जांपल आई एम ट्राइंग गिविंग यू अ युक्ति। आप समझो कि how do you feel when you see the other person digging his nose सामने, कैसा लगता है? हाँ, दीपाली, घृणा लगता है। तो जब भी कोई ऐसा दिखता है ना, जब भी आप when you are digging your past ना, look at yourself that you are digging your nose and someone else is looking at you like that. जब भी you are digging your past, अपना चेहरा सामने आएगा, कर रहा हूँ। So you are the digger. Very dirty but very effective. So वो सामने आएगा कि I am the digger and धीरे धीरे आपको लगेगा मैं क्यों डिग कर रहा हूँ, क्या आवश्यकता है मेरे को इतना डिग करने की।
इंसान स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ेगा, धीरे 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 वो पास्ट को इतना याद, भले इवन पॉजिटिव इंसिडेंट्स याद रखना, फर्स्ट में आप नेगेटिव इंसिडेंट्स को उड़ाओगे एंड आगे जाकर आप पॉजिटिव इंसिडेंट्स को भी उड़ाते हो। बिकॉज ये अपने फर्स्ट वर्कशॉप में किया था, जब पॉजिटिव इंसिडेंट्स भी होगा, अगर अपन राह को जोड़ते वो चिपक कर सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वापस वो आएगा। पर उस समय अगर मैं ऑब्जर्वर का स्टेट महसूस करता हूं तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चिपकेगा नहीं, और जब चिपकेगा नहीं तो वापस उठने का चांस नहीं है। So presently what I can do is I can try to be an observer as many times as I can. It's a difficult thing, but at least अभी अगर शुरुआत में ये चालू कर सकते, मैं पास्ट डिगिंग ऑफ नेगेटिव इंसिडेंट्स तो बन सकता। सही है धर्मेंद्र भाई, वो हो सकता है। और जब भी अपन करेंगे तो क्या ख्याल आएगा अपने को? बस ख्याल आने लग जाएगा कि ये कितना गंदा काम कर रहा हूँ। ये थी, पर आप सोचिए कि आपकी ग्रोथ हुई है कि नहीं। गिव अ मिनट। Unnecessary gossip and judging people, has it reduced? क्यों करता हूं मैं? क्या जरूरत है? देखना ही तो लोगों की पहले अच्छाई देखो, दूसरों की हर बुराई में मेरा अहंकार छुपा है, केवल मेरा अहंकार। डिफिकल्ट है, डिफरेंट है। क्या मैं अपने भूत में बहुत रहता हूं? पुराने इंसिडेंट्स मेरे को क्या बार बार सताते हैं, बार बार उसको लेकर मैं परिवार में झगड़ा करता हूं। 20 साल पहले शादी का कोई प्रसंग, इन-लॉज के साथ कोई प्रसंग, उस इंसिडेंट को देखो, छोटा सा इंसिडेंट है। क्या आप इतने छोटे हो कि 20 साल पुराना कोई छोटा सा इंसिडेंट भी आपको सता सकता है? एक छोटा सा किसी ने आपका मान भंग कर दिया, वो चीज को बार बार लेकर आकर आप तड़प रहे हो। If I have to spiritually grow, ये सब चीजें मेरी जिंदगी से निकल जाएंगी, बाहर आएंगी। क्या वो आ रही? क्या मेरी कथनी और करनी में समानता है? Do I practice what I preach? Do I do what I say? Do I apply the same advice as I give to others, to myself? Analyze yourself. Am I growing on these fronts? Am I improving? नेक्स्ट 3 का सेट, सांसारिक इच्छा एंड स्पिरिचुअल डिजायर। आई गॉट टोटल 100 का बॉक्स है मेरे में। अभी मैं सोचूंगा मेरी 50 इच्छाएं सांसारिक हैं और 50 इच्छाएं स्पिरिचुअल है। ओवर दिस पीरियड लॉट ऑफ पीपल को ये समस्या है, मेरे को भी ये समस्या बहुत साल पहले थी कि मेरी दोनों इच्छाएं प्रबल हो रही। मेरी संसार के प्रति भी इच्छा कम नहीं हो रही थी और कुछ न कुछ बढ़ रही थी, और साइमल्टेनियसली मेरी सांसारिक, पर ये समझना वो बॉक्स 100 से ऊपर ओवरफ्लो नहीं हो सकता। वो 100 के ऊपर जिस दिन ओवरफ्लो होगा तभी भी आपको प्रॉब्लम है कि आपकी स्पिरिचुअल डिजायर्स भी स्पिल आउट हो जाएंगे। तो अगर ये सीसॉ है, सीसॉ में अगर ये एक बाजू ऊपर जाता है तो एक बाजू नीचे ही जाना चाहिए। तो अगर आपको ये आपको खुद को एनालाइज करना है कि अगर मेरे स्पिरिचुअल डिजायर्स बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे
सांसारिक इच्छाएं अंश मात्र थोड़ा कम हो रहा है कि नहीं। इट्स अ वे टू एनालाइज। अगर वो दोनों ही बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप से खिलवाड़ करूं, और ये कोई फोर्सफुली नहीं होगा, स्वाभाविक होगा। डिस्को के बदले में भक्ति पसंद आएगी, ऐसा होगा। You will not have to force yourself. Lot of things like that, those transitions will come in your life. So you have to see that मेरी spiritual desires बढ़ रही हैं और मेरी सांसारिक इच्छाएं कम हो रही हैं। Next point, mood swings and manufacturing happiness. You will have to classify yourself. क्या first of all, am I a moody person? And if I am a moody person, मेरी frequency of being moody has reduced or not over a period of time? कितने बार परिवार वाला भी कोई होगा बोलते हैं कि यार ये थोड़ा मूडी आदमी है, थोड़ा सोच समझ कर बात करना, राइट टाइमिंग देखकर बात करना। क्या मैं वैसा व्यक्ति हूँ? और people can come to me and speak to me anytime. I'm okay. I'm happy all the time. Second point, manufacturing happiness. Am I dependent on materialistic things or outside things or relations to manufacture happiness, or can I manufacture my own happiness? मैं हर चीज का देखना पूरा अपन नहीं कर पाएंगे, but am I growing towards it? Am I moving towards it? Have I even started the journey? क्या मैंने 1% भी happiness manufacturing का काम चालू किया है कि नहीं किया है? या अभी भी 100% मेरा happiness बाहर आता है? भले आज 1% भी मेरे अपने से आने लग जाएगा, it's an achievement. कितने बार आपको ऐसा ट्राई करना चाहिए कि एक दिन 2 दिन आप एकांत में रहो, देखो कि मैं अपने आप से कुछ कह सकता हूँ कि नहीं कर सकता। आज मेरे सामने जीते जाते मेरे पिताजी प्रमाण हैं। He lives the same life every day. वही रूटीन, सुबह उठेंगे, वॉक के लिए जाएंगे, 4-5 सामायिक करेंगे, ध्यान करेंगे, वही टाइम पे नियमित टाइम पर खाना खाएंगे, सुबह नियमित टाइम पर खाना खाएंगे शाम को, and he is happy all the time. That is a simple signal that he is manufacturing his own happiness. उनको न टीवी माध्यम में, न बेटे का एक रिलेशन में कोई बात, बेटे बहू बच्चे, ठीक है, वो नहीं भी होंगे तो वो उतने ही आनंद में रहते हैं। I have seen that. So I have a living example in front of me. He is able to manufacture his own happiness. I'm not saying 100%, but to a great extent. He started his journey so many years before. But I am dependent on all the worldly things for my happiness. तो इस जर्नी में मेरी शुरुआत हुई कि नहीं हुई कि मैं एक कदम भी आगे बढ़ा हूं अपने आप से आनंद, अपने अंदर का आनंद। सो ये आप एनालाइज कीजिए कि 1.5 साल में मैं कहां आगे बढ़ा। तीसरा, स्टेबिलिटी लेवल्स इन द ग्लैड एक्सेप्टेंस। 3 मंत्र अपने सीख लिया। लेट गो, सो व्हाटएवर हैपेंस फॉर द बेस्ट। मैं और डिटेल में ही जाऊंगा, इसके आपने डिटेलिंग सब कर चुके हैं। क्या ये 3 मंत्र अपनी जिंदगी में आए? कभी ये 1.5 साल में ऐसे इंसिडेंट्स आए कि यू कुड से सो व्हाट और व्हाटएवर हैपेंस फॉर द बेस्ट। बने सो न्याय। दादा भगवान का बहुत बढ़िया वो स्टेटमेंट है, जो हुआ वो न्याय हुआ है। Were you able to apply the theories into your life? If you are able to do that, that is spiritual growth. So you are moving towards it. अगर अपन सिर्फ बातें करेंगे और ये सब चीजें, ये थियरीज अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, I am sorry you are not growing. Like you said, new will come into existence. The new will come into existence only when you come out of the comfort zone. ये सब बदलाव आपको लेकर आने पड़ेंगे। Difficult भी होंगे, different भी होंगे, discomfort भी महसूस होगा। एक just overall, lot of people say that ये सब करके ना लाइफ एकदम बोरिंग हो जाएगी। आप बोलते हो किसी का गॉसिप नहीं करना है, आप बोलते हो खाने के ऊपर वो भी नहीं करना है, क्रिकेट मैच पे भी टिप्पणी नहीं करनी है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज देयर इन लाइफ? ये आएगा मन में, ये प्रश्न भी आएगा। आपने वो हैप्पीनेस टेस्ट किया है? जैसे वो बच्चे हैं, वो रिमोट कंट्रोल चलाकर जो गाड़ी चलाने का मजा है वो उसने टेस्ट नहीं किया है, तो वो उसी में खुश हो रहा है, घूमते रह रहा है, मेहनत कर रहा है बेवकूफ की तरह। अपन भी बेवकूफ अपने वो हैप्पीनेस जिस दिन वो टेस्ट करेंगे, अंश मात्र में टेस्ट करेंगे, अपने को लगेगा ये भी वो बच्चे के अंदर क्या कर रहा था, वो रिमोट कंट्रोल पकड़ने का समय आ गया है। Let's not make it too late. So these are the 3 things. Use your eye thermometer, test your stability level, test your glad acceptance level,
to check. अंसारी की इच्छा थोड़ी थोड़ी 1% भी कम हुई कि नहीं हुई?